देखिए इन क्वेश्चन नंबर 2 इट सेज an atom, now see, it says an atom of element X contains, an atom of element X contains 5 protons, 6 neutrons and 5 electrons. अब देखो वो कहता है कि an atom, पहले तो उसने ये बोला कि there is an atom of element X. तो let's write down X like this. अब वो कहता है it has 5 protons. याद है 5 protons हैं तो उसका proton number will be 5 and it has 6 neutrons. Now watch, 5 protons and 6 neutrons. तो 5 plus 6 total nucleons कितने हो गए? याद है protons and neutrons are collectively called nucleons. Remember, these are called nucleons. तो if I write this, थोड़ा सा इधर मैं गैप से यहाँ लिखता हूँ. तो protons उसमें there were 5. See, there were 5 protons. So that means the proton number for this element would be 5. And it has 5 protons and 6 neutrons. So altogether, there are 11 nucleons. Now tell me, is this atom of X a neutral atom or a charged one? Why is this a neutral atom? Because it has 5 protons and it has 5 electrons. So 5 protons and 5 electrons means that this X is a neutral atom. X is going to be a neutral atom because it has same number of protons and electrons. तो ये बात आप देखिए कि हमेशा जब भी ना आपको किसी एटम या एलिमेंट के प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स दिए हों तो ये वाली अरेंजमेंट याद है पहले ही निकाल लिया करें कि 5 protons means its proton number is 5 and 5 plus 6, 5 protons and 6 neutrons, collectively it is 11 nucleons. So these protons and neutrons collectively are written at the top. Then you should check that if there are 5 protons and 5 electrons, that means that this will be a neutral atom. अब वो कहता है which statements about element X are correct? Which statements about element X are correct? So let's see. अब वो कहता है X has an atomic number of 6. देखिए आपको पता है कि this number is called by two names. We call this proton number या we call this atomic number. Proton या atomic number, and this number is called by three names. We either call it nucleon number या we call it the mass number or we call it the relative atomic mass. We call it the relative atomic mass. So these are the, तो इसीलिए देखिए आपको इस तरह की छोटी छोटी डिटेल्स बताई जाती थी ताकि सवाल आए तो फिर पता हो. तो लेट्स सी वो कहता है which statements about element X are correct. अच्छा जब मैंने आपको बताया था when he talks about के what is correct, तो it means you just need to figure out the correct statements. अब one statement number 1 में it says X has an atomic number of 6. देखिए it has a proton number or atomic number of 5, not 6. So that means this is a wrong statement. So we'll cross it out. ठीक. Now in the second statement it says X has a nucleon number. अच्छा ये गौर से पढ़िए, it's a nucleon number of 11. तो ये statement तो correct आ रही, तो 1 is wrong, 2 is correct. ठीक है. अच्छा इसी तरह थर्ड में वो कहता है कि X is in group 2. ये IGCSE का मई जून 2023 MCQs में कर रहा हूँ, तो GCE स्टूडेंट्स भी बैठे रहें, एक रिवीजन ही होगी इससे बड़ी अच्छी, क्योंकि MCQ अब इसके उसमें उसके इसमें कहीं भी आ सकता है, तो मकसद कॉन्सेप्ट तो एक ही है. तो आप ये भी देख लीजिए, फिर मैं इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स पे भी आता हूँ. अब थर्ड में कहता है X is in group 2 of the periodic table. ठीक है. अब मुझे ये बताइए कि X is in group 2 of the periodic table. तो गौर करो बच्चों, X जो है वो group 2 of the periodic table. तो X is in group 2 of the periodic table. तो मुझे ये बताइए
जी पहले ये जरा एक मिनट कर लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं। तो सी इट सेज x is in group 2 of the periodic table. Now tell me, क्या x group 2 of the periodic table में? देखिए if it has 5 electrons, तो इसकी electronic configuration would be, now 5 electrons means इसकी electronic configuration is going to be 2,3. याद है आपको बच्चों के electronic configuration tells us 5 things: the group number of the element, the period number, the nature, the valency and the oxidation state. अब देखिए ग्रुप नंबर कहां से पता चलता है? If it has 3 electrons in the last shell, so it means this element belongs to group 3. And if it has 2 shells, so it means this element belongs to period number 2. And if there are 3 electrons in the last shell, 3 or less than 3 हो, तो that is a metal atom. ठीक है, ये कोई metal है. और याद है अगर उसके 3 electrons हैं तो it is going to lose 3 in order to become stable. So that means के the valency of X is going to be 3. And since it is losing 3 electrons, तो 3 electrons lose करके याद है उस element पे 3 positive का चार्ज आ जाता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 प्लस होगा. तो देखिए हमें कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से कॉन्फ़िगरेशन पता लगी, और फिर लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट इज मेंबर ऑफ ग्रुप 3. देयर आर 2 शेल्स, so it's in period 2. If it has 3 or less than 3 electrons in the last shell, it's a metallic atom, which it will lose these 3 electrons, so it will have a valency of 3. And when it loses 3 electrons, so it gets a charge of 3 positive. So it says that X is in group 2 of the periodic table. No, X is in group 3 of the periodic table. So statement number 3 is going to be wrong. Similarly, आगे वो कहता है कि X is in the second period of the periodic table. X is in the second period of the periodic table. So see, we can clearly see that there are 2 shells, so it is in the second period. बिल्कुल सही है. तो it means statement number 4 is also correct. तो finally वो कहता है कौन सी statements correct हैं, which statement about element X are correct. तो एक 2 is correct and एक 4 is correct. तो 2 and 4, that makes option D as the correct one, because 2 and 4 are correct statements. तो let's check if we are right or wrong. तो मकसद देखिए ये है कि आपको बड़ा क्लियरली इसमें नजर आएगा कि 2 का ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है. देखिए 19th में वो कहता है कि Q and R are elements in the same period of the periodic table. देखिए बच्चों, Q and R are elements in the same period of the periodic table. अच्छा एक बात बताओ, ये Q and R अगर सेम पीरियड में है तो Q and R के फिर सेम नंबर ऑफ शेल्स नहीं होंगे? ये बात याद आ रही है? वैसे अब देखो, ये सेम पीरियड की बात पढ़ के हर दफा आप ये सोचा करें कि एक अगर उनका सेम पीरियड है तो उसमें सेम नंबर ऑफ शेल्स नहीं होने चाहिए. ठीक, तो वो कहता है अब आगे, कहता है Q has 7 electrons. Q has 7 electrons in its outer shell and R has 2 electrons in its outer shell. तो मुझे ये बताइए कि Q has 7 electrons in its outer shell and R has 2 electrons in its outer shell. ये बात समझ आई सबको? तो Q के पास कहता है 7 electrons in the outer shell हैं और R के पास 2 electrons in the outer shell. इससे क्या साबित हुआ? एक तो ये जहन में रखें, अगर क्यू आर सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में है तो उनमें सेम नंबर ऑफ शेल्स होंगे. लेकिन कहते हैं क्यू हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल. ये बात आपको क्या बता रहा है क्यू के बारे में? कि क्यू इज अ व्हाट? क्यू इज डेफिनेटली अ नॉन मेटल. देखिए मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूं कि इससे साबित हो रहा है कि क्यू एक नॉन मेटालिक एलिमेंट होगा. क्लियर है ये? और R has 2 electrons in the outer shell. अच्छा ये नॉन मेटालिक है, और एक सेकंड, Q अगर 7 electrons in the outer shell है तो ये नॉन मेटालिक है एंड इट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द ग्रुप 7.
याद है ये ग्रुप 7 का मेंबर होगा, और आर के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर आउटर शेल में, तो फिर इसका मतलब है कि आर जो है दैट इज अ मेटल ऑफ ग्रुप 2। इजंट दिस अ मेटल ऑफ ग्रुप 2? तो ये आर जो है ये ग्रुप 2 का मेटल होगा। अब बताइए कि उसने कहा what which statement is about Q and R is correct। तो चलो हमने अपनी इंफॉर्मेशन यूं निकाल ली कि देखो ये क्यू आर दोनों सेम पीरियड में, बट क्यू जो है वो एक ग्रुप 7 का मेंबर है और आर जो है वो ग्रुप 2 का मेटल मेंबर है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वैसे अगर हम देखें तो कहता है कौन सी स्टेटमेंट अबाउट क्यू एंड आर करेक्ट है, दोनों के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में कहता है क्यू इज अ मेटल, आर इज अ नॉन मेटल। क्यू इज अ मेटल, क्यू इज नॉट अ मेटल, क्यू तो नॉन मेटल है। तो ये बात तो इधर ही गलत होगी, ऑपोजिट बात कर। बी में कहता है क्यू एंड आर हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स। नॉट एट ऑल, क्योंकि क्यू एंड आर इन द सेम पीरियड, तो सेम पीरियड में तो सेम नंबर ऑफ शेल्स नहीं होने चाहिए। यस, तो बी ऑप्शन इसलिए गलत बात होगी। सी में कहता है आर इज फाउंड टू द राइट ऑफ क्यू इन द पीरियोडिक टेबल। मुझे बताओ बच्चों, आर जो है वो मेटल है ना, तो मेटल्स कहाँ पे? अब देखो ये सेम एक पीरियड है, मैं चलो एक मिसाल देता हूं आपको कि हम पीरियड 3 के एक एग्जांपल फर्ज करो ले लेते हैं। तो इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, याद है फिर कौन था? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। क्या ये पीरियड 3 नहीं था बच्चों? कोई भी ना एक मिसाल सेम पीरियड का कोई भी एक एग्जांपल ले लो कि देखिए इसमें सोडियम, अब मुझे ये इस तरह ऑर्डर याद है कि इनका इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर है ना, सिलिकॉन का 14 है, फास्फोरस 15 है, सल्फर 16 है, क्लोरीन 17, आर्गन 18। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों के, जब ये सेम पीरियड के एलिमेंट्स नहीं है क्या, बट हम इस वक्त जो डिस्कस कर रहे हैं कि आर ग्रुप 2 का मेंबर था, तो देखो ये हमारे पास ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 3 था, ये ग्रुप 4 है, ये ग्रुप 5 है, ये ग्रुप 6 है, ये ग्रुप 7 है और ये ग्रुप 8 है। ऑर्डर याद है ना पीरियोडिक टेबल का? देखो ये फायदा था दिमाग में स्केच रखने का कि देखो अब अगर मुझे बताओ मैं इस पीरियड की फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं, तो फिर इसमें आर ग्रुप 2 का मेंबर है ना, तो यकीनन आर इसका मतलब है वो इस मैग्नीशियम को कह रहा है, आर इसको कह रहा है, और क्यू जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल में, तो ये ग्रुप 7 का यानी क्लोरीन की बात कर रहा है। अगर हम इस पीरियड का डिस्कशन कर रहे हैं तो सपोज ये फिर क्लोरीन की बात कर रहे हैं कि क्यू इधर है, तो सेम पीरियड अगर हो रहा है, दीज आर मेंबर्स ऑफ द सेम पीरियड। आप बेशक पीरियड 3 ले लो, आप पीरियड 2 ले लो, पीरियड 4 ले लो, सब पे यही बात। ग्रुप 2 वाले मेंबर को आर कहोगे क्योंकि आर इज अ मेटल ऑफ ग्रुप 2, और ग्रुप 7 वाले को आप क्यू का टाइटल देना पड़ेगा जिस भी पीरियड की बात करूं। तो मैं अगर इस पीरियड की बात करूं, इसमें आर वो बेसिकली फिर कह लो मैग्नीशियम को कह रहा है और क्यू क्लोरीन को कह रहा है। समझ में आ रही है ना बात? देखो सामने है तो आसान हो गया। क्या ये सी ऑप्शन ठीक बात है कि R is found to the right of Q in the periodic table? No, R is found to the left of Q। आपको याद है ना पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 1 2 3 ये सारे कौन है? दीज आर मेटालिक ग्रुप्स, याद है? और ये ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 8 तक इनको हम कहते थे नॉन मेटालिक। पीरियोडिक टेबल में मेटल्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मेटल सारे लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और नॉन मेटल सारे राइट हैंड साइड पे हैं। तो देखो ना पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं और राइट साइड पे जो है वो नॉन मेटल्स। तो आर जो है, आर इज नॉट टू द राइट ऑफ क्यू, इट इज टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो वो तो कह रहा है आर इज टू द राइट, तो सी वाली बात बिल्कुल आउटराइटली गलत। तो फिर कौन सी बात हो सकती है? प्रोबेबल ऑप्शन डी होगा, बट ये नहीं कि डी ही होगा, हमें पढ़ना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। डी में कहता है द प्रोटॉन नंबर ऑफ आर इज लेस देन द प्रोटॉन नंबर ऑफ क्यू। द प्रोटॉन नंबर ऑफ आर इज लेस देन द प्रोटॉन नंबर ऑफ क्यू। तो मुझे बताएं कि आर का प्रोटॉन नंबर लेस है, तो गौर करो, प्रोटॉन नंबर ऑफ आर इज लेस देन द प्रोटॉन नंबर ऑफ क्यू।
देखिए क्यू नॉन मेटल है ना और आगे राइट साइड पे है, तो एलिमेंट्स तो इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर के ऑर्डर से सेटल नहीं हुए हुए। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो वाकई में आर का प्रोटॉन नंबर देखो लेस है और क्यू वाले का प्रोटॉन नंबर ज्यादा ही नहीं होगा। अगर हम किसी सेम पीरियड की बात करें तो फिर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। दैट मींस डी शुड बी द करेक्ट आंसर। तो कैन आई मार्क दिस एज डी? तो 19th का इफ वी चेक बैक तो विल बी डेफिनेटली 19 का डी, तो बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एलिमेंट एक्स हैज 7 प्रोटॉन्स। ठीक है, एलिमेंट एक्स हैज 7 प्रोटॉन्स, एलिमेंट वाई हैज 8 मोर प्रोटॉन्स देन एक्स। ठीक है, तो एलिमेंट एक्स में कहता है 7 प्रोटॉन्स हैं और एलिमेंट वाई हैज 8 मोर प्रोटॉन्स देन एक्स। तो जरा चलिए हम देखते हैं कि एक्स में अगर 7 प्रोटॉन्स हैं तो वाई में कहता है 8 मोर प्रोटॉन्स। एलिमेंट वाई हैज 8 मोर प्रोटॉन्स देन एक्स, इसका मतलब इसमें टोटल 7 + 8 यानी 15 हो गए। ठीक है, तो x में 7 प्रोटॉन्स हैं और एलिमेंट y में 8 मोर प्रोटॉन्स हैं, तो 7 में 8 ज्यादा हम कर देंगे तो 7 + 8 विल बी 15। आगे कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट एलिमेंट y इज करेक्ट। विच स्टेटमेंट अबाउट एलिमेंट y इज करेक्ट? तो कहता है y हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स शेल्स देन x। चलिए हम जरा यूं देखते हैं कि वैसे अगर ये न्यूट्रल एटम होता तो इसमें 7 का मतलब है इसमें 7 प्रोटॉन्स हैं तो 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होते। इसमें 15 प्रोटॉन नंबर है तो 15 प्रोटॉन्स हैं तो 15 ही इलेक्ट्रॉन्स होते। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब तो ये होता कि इसका ये 2 5 बनता। वैसे आपको देखिए अब एक्स वाई की हर कहानी पता चल जाएगी कि प्रोटॉन नंबर पता होना तो इस एलिमेंट की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। देखिए अब ये 7 14 हो सकता है यानी नाइट्रोजन है और ये फॉस्फोरस P1531। ठीक है, तो ये दो इस तरह से आ जाते हैं, तो इस 15 के साथ उसकी कॉन्फ़िगरेशन 285 हो जाएगी। तो अब वो ये कहता है कि यहाँ से ये 25 है और ये 285 ऐसे आ जाती है। अच्छा, अब देखिए वो कहता है कि विच स्टेटमेंट अबाउट एलिमेंट y इज करेक्ट। कहता है y हैज मोर इलेक्ट्रॉन शेल्स देन x। तो देखिए वाकई में x के पास 2 शेल्स हैं तो y के पास 3 शेल्स हैं, तो बात तो ठीक है। देखते हैं बहरहाल बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लिया करें। जरूरी नहीं है देखिए कि आपको ए वाली बात बिल्कुल सही मिले तो बी सी डी को आप पढ़ें भी ना, एक बार देख लिया करो क्विकली। कहता है y हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल देन x। y हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल देन x। तो देखिए y और x में इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर हैं, मोर लेस तो है ही, तो ये बी वाली बात गलत है। सी में कहता है y इज इन अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल देन x। डिफरेंट ग्रुप, देखिए इसके भी ग्रुप नंबर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चलता है। अब इस x वाले में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये ग्रुप नंबर 5 में ही होगा। y में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस ये भी ग्रुप नंबर 5 में होगा। तो सी वाली बात तो गलत है कि दे आर नॉट इन डिफरेंट ग्रुप्स, दे आर इन द सेम ग्रुप, दैट इज ग्रुप 5। डी में कहता है कि y इज इन द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज x। y इज इन द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज x, तो y इज इन द सेम पीरियड। देखिए सेम पीरियड में ये नहीं है, इसके 2 शेल्स हैं तो पीरियड नंबर नंबर ऑफ शेल्स से पता चलता है। इसमें 2 शेल्स हैं तो ये इसका मतलब है कि पीरियड नंबर 2 में होगा और इसमें 3 शेल्स हैं तो इसका मतलब है कि ये पीरियड नंबर 3 में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए इसमें सबसे करेक्ट बात है, ये आपका आंसर 4th का ए बनेगा। जरा चेक कीजिए, देखिए 4th का ए ऑप्शन। कहता है सम इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टिकल्स पी क्यू आर एंड एस इज शोन। देखिए न्यूक्लियन नंबर पी का ये है 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें बताया हुआ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पी क्यू आर एस आपको इस तरह से इसने ये दिया हुआ। अब वो कहता है कि which two particles are isotopes of the same element। which two particles are isotopes of the same element। तो आप ये देखिए कि कहता है कौन से दो पार्टिकल्स, which two particles are isotopes of the same element। आइसोटोप्स के लिए बच्चों जरूरी है कि उनका प्रोटॉन नंबर सेम हो, मास नंबर उनका बेशक जो है वो डिफरेंट हो। तो देखिए जरा इसमें न्यूक्लियन नंबर तो मास नंबर को कहते हैं,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो हमें पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखिए इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आप यहाँ से देख सकते हो कि जब आइसोटोप्स की हम बात करते थे, फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक आइसोटोप की मिसाल सपोज ले लो, मिसाल N714 और N715, ये नाइट्रोजन के मिसाल दो आइसोटोप्स हैं, तो इनका प्रोटॉन नंबर सेम होता है, ठीक है। प्रोटॉन्स की तादाद जब इनमें सेम सेम होगी तो फिर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स भी इनके सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे बट न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। देखो 14 माइनस 7 7 आ रहा है और 15 माइनस 7 विल बी 8 न्यूट्रॉन्स। तो अब आप इसको क्विक शॉर्ट में ये भी देख सकते हो कि आपके पास जो है वो सेम इलेक्ट्रॉन्स या सेम प्रोटॉन्स किस केस में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम, देखो ये 6 और ये 6 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये यकीनन P और ये S, यही दो आइसोटोप्स हो सकते हैं। ये देखो ना, अगर मैं मिसाल इनका वो करूं कि इधर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी 6 हैं और इसमें भी 6 हैं, तो आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं। तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के खाने में जाके देख लो कि इधर भी 6 हैं और इधर भी 6 हैं, तो फिर इसका ये P एंड S ये दोनों आपके पास जो है वो आ जाएंगे इस तरह के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8th का बी ऑप्शन इस केस में करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है। तो 8th का बी ऑप्शन ये आपके पास जवाब आ जाएगा। कि which statement about the trends shown by elements of period 3 in the periodic table is correct? कहता है कि which statement about the trends shown by the elements of period 3 in the periodic table is correct? तो कौन सी statements about the trends shown by the elements of period 3? अच्छा, period 3 की बात हो रही है, तो कौन सी statement वो अच्छा सॉरी मैंने पूरा पढ़ा नहीं, is not correct। हाँ, which statement about the trends shown by the elements of period 3 in the periodic table is not correct? अच्छा बच्चों, नॉट करेक्ट का ना जरा आपने ख्याल से मतलब समझना है कि इसका मतलब है इसमें 3 बातें करेक्ट होंगी, हमने वो इनकरेक्ट वाली बात ढूंढनी, ठीक है। जी बिल्कुल सही। तो अब जरा देखिए कि आपने ये देखना है, पहले में कहता है द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटालिक अक्रॉस द पीरियड। देखिए ये तो आपको बात पता है ना कि पीरियड 3 में जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे, पीरियड 3 ये हॉरिजॉन्टल वाला, तो उसमें तो ये जो ग्रुप 1 2 और ग्रुप 3 होगा वो तो मेटल्स हैं, और फिर वो जो ग्रुप 4 5 6 7 और 8 वाले होंगे ये तो इस तरफ नॉन मेटल्स हैं। पीरियोडिक टेबल का तो जनरल ट्रेंड पता है ना कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड सारी मेटल्स है और राइट हैंड साइड जो है वो नॉन मेटल्स पे बेस करती है, ठीक है। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो कहता है द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटालिक अक्रॉस द पीरियड। तो जब आप लेस जाते हो, सॉरी टुवर्ड्स द राइट, तो वो मेटल से जाहिर है नॉन मेटल की तरफ कन्वर्ट होते हैं, तो लेस मेटालिक हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात तो सही है। वो कह रहे हैं नॉट करेक्ट कौन सी, तो आपने नॉट करेक्ट वाली ढूंढनी है। ये तो बात, चलिए मैं इधर इसको ऐसे लिख लेता हूं कि ए तो करेक्ट है कि जब आप पीरियड 3 में जाते हो तो एलिमेंट्स बिकम लेस मेटालिक, क्योंकि वो मेटल से नॉन मेटल में चेंज होते जा रहे होते हैं अक्रॉस द पीरियड जब आप जाते हो। फिर बी में कहता है द ग्रुप नंबर इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। बिल्कुल सही है, ग्रुप नंबर उसका बढ़ता जाता है ना। तो देखिए आप अगर पीरियोडिक टेबल आपको गिवन होगा, वो बेशक आप टेयर ऑफ करके अपने पास अलग से साइड पर रख सकते हो ताकि बार बार पीछे मुड़ के ना जाना पड़े, लेकिन अब ग्रुप नंबर उसका जो है वो इंक्रीज करेगा ना। देखिए आप कोई भी पीरियड 3 का मेंबर उठाओगे तो उसका ग्रुप 1 है, फिर ये ग्रुप 2 है, फिर वो बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, फिर ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 ग्रुप 6 ग्रुप 7, तो अक्रॉस द पीरियड तो ग्रुप नंबर कंसेक्यूटिवली बढ़ता है। बिल्कुल सही है। तो ये बात बी वाली स्टेटमेंट भी क्या है, बी को भी हम करेक्ट मानेंगे। सी में कहता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स इंक्रीज अक्रॉस दैट पीरियड।
the number of electron shells increases across the period. तो देखिए ये बात तो गलत नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड, वो तो क्या रहते हैं, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखिए पीरियड 3 है तो फिर तो सबके 3-3 शेल्स ही नहीं होंगे। अगर पीरियड 3 है तो फिर तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स अक्रॉस द पीरियड 3 ही होने चाहिए सबके। वो तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स इंक्रीज, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और यही नॉट करेक्ट है। बट चलो हम अगला डी भी पढ़ते हैं कि द नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स तो जाहिर है बढ़ते हैं ना, कि जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो तो ग्रुप 1 के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रुप 2 के आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ग्रुप 3 वालों के 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ग्रुप 4 वालों के 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ग्रुप 5 के लास्ट में, तो वो तो अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते जाएंगे। तो ये डी वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ये नॉट करेक्ट वालों में ना इस तरह लिखा करो, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। तो इसका मतलब है कि ये इस तरह से 22 का सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ये आपके पास आंसर है। क्लियर हो गया? देखिए वो कहता है द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पार्टिकल विद न्यूक्लियन नंबर यानी मास नंबर ऑफ 40। देखिए आपको पता है कि मास नंबर 40 किसका होता है, वो कैल्शियम का। प्रोटॉन नंबर इसका 20 होगा, ठीक है जी। तो मास नंबर यानी उसने जो कहा ना न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर या उसे रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं, वो 40 इस तरह से ये आ रहा है, ठीक है। तो कैल्शियम का जो टोटल आपके पास मास आ रहा है दैट इज 40। अब वो कहता है कि द टेबल शोज द सजेशंस दैट द 3 स्टूडेंट्स 1 2 3 मेड टू आइडेंटिफाई द पार्टिकल, ठीक है। अब वो कहता है कि the table shows the suggestions that the 3 students 1 2 3 made to identify the particles, ठीक हो गया। अब वो कहता है which students are correct। अब देखिए इसने हमें इसमें ये जो दिखाया हुआ है इसमें, अब ये उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। जरा गौर कीजिएगा कि अगर मास नंबर 40 है तो अच्छा, वैसे एक बात और भी है, सॉरी, कि 40 तो आर्गॉन का भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, आर्गॉन का भी 40 हो सकता है, और किसी और भी देखिए आइसोटोप ऑफ एनी एलिमेंट कैन बी 40। तो वैसे ये कहना फिलहाल इतना फेयर नहीं होगा कि ये सिर्फ कैल्शियम और आर्गॉन ही हो सकता है, क्योंकि प्रोटॉन नंबर सबका फिक्स्ड होता है, बट मास नंबर तो और भी बहुत से एलिमेंट्स का या आइसोटोप्स का 40 हो सकता है। चलो मैं इसको फिलहाल मिटा देता हूँ। इधर से देखते हैं कि ये जो भी एलिमेंट है इसको चलिए फिलहाल एक्स कह लेते हैं, ठीक है जी। अब इसके पहले शेल में देखिए आपके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में इसके 2 4 6 और 8 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 8 हो गया। तीसरे शेल में इसके, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 हैं, तो ये आपके पास 2,8,8 ये आ गए आपके पास एक्स के टोटल, जो इस तरह से करके फॉर एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट्स आ गए, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2,8,8 ये इसकी बनी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन। खैर अब वो कह रहे हैं कि बताइए ये किसकी हो सकती है। अच्छा, अब एक मसला ये है कि देखें अगर इसमें उसने आपको ये कहा है कि द टेबल शोज द सजेशंस दैट 3 स्टूडेंट्स 1 2 एंड 3 मेड टू आइडेंटिफाई द पार्टिकल। तो पार्टिकल 1 यानी ये आर्गॉन भी हो सकता है, बात तो ठीक है कि देखिए इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आर्गॉन का AR18 40 का ये न्यूट्रल एटम भी हो सकता है। तो इसमें अगर 18 ये प्रोटॉन्स है, एक्चुअली तो ये प्रोटॉन्स थे, तो उसके न्यूट्रल एटम में 18 ही इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं। तो इसका मतलब है कि ये फिलहाल आर्गॉन का एटम भी हो सकता है, न्यूट्रल एटम, या फिर जैसे मैंने आपको कहा था, देखिए क्लोरीन ये इसलिए नहीं हो सकता कि क्लोरीन का जो मास नंबर है दैट इज Cl17 35.5, ठीक है। देखिए क्लोरीन का जो है वो 17 और 35.5, तो ये तो कह रहे हैं कि मास नंबर 40 है।
तो ये 40 तो इसका नहीं हो सकता, तो फिलहाल वी कैन कट दिस। बट थर्ड पे देखिए तो इसका मतलब फिलहाल तक ये 1 हो सकता है, या थर्ड वाला स्टूडेंट भी देखिए सही नहीं कह रहा कि अगर ये कैल्शियम 2+ का आयन हो, तो देखिए मास नंबर तो उसका बात तो ठीक है कि कैल्शियम 2040 है, और 2+ वाला होगा तो इसमें प्रोटॉन्स तो 20 ही होंगे, और न्यूट्रल एटम होता तो इलेक्ट्रॉन्स भी 20 ही होने चाहिए थे प्रोटॉन्स जैसे, बट 2+ का मतलब है इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वाली बात इस तरह भी दुरुस्त है। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट 1 भी सही कह रहा है और स्टूडेंट 3 भी सही कह रहा है कि देखिए ये पार्टिकल मुमकिन है कि दिस इज आर्गॉन, आर्गॉन है तो फिर उसका न्यूट्रल एटम, और वैसे भी आर्गॉन इज 1840, और अगर ये कैल्शियम का आयन है तो ये Ca2+ का आयन भी हो सकता है, तो दिस इज कैल्शियम 2+, तो इट मीन्स कि ये आपके पास 1 और 3 इसका जवाब ऐसे करके यूं आ सकता है। तो इट मीन्स फोर्थ का बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर, फोर्थ का बी ये जवाब इसका सही। कहता है व्हाट इज एन आइसोटोप ऑफ E1531। अब देखिए ये E1531 का आइसोटोप कौन, अब उसका प्रोटॉन नंबर तो 15 ही होना चाहिए, आइसोटोप में याद है ना प्रोटॉन नंबर सेम होता, तो जिसका 14 है ये तो गया, इसका तो प्रोटॉन नंबर 14 है, ये नहीं हो सकता, इसका प्रोटॉन नंबर 16 है, ये नहीं हो सकता, इसका भी 16 है, ये भी नहीं हो सकता। ये तो बड़ा सीधा था चेक करना कि आइसोटोप कहते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर एक जैसा हो, मास नंबर इसका 31 है तो इसका 33 आ रहा है, तो ठीक है हम इसमें बी ऑप्शन को आइसोटोप मान लेते हैं। फोर्थ का बी ऑप्शन, इसका जरा आंसर भी चेक करते जाइए साथ साथ ताकि आपको क्लैरिटी रहे, तो फोर्थ का बी ये ऑप्शन होगा। अब कहता है ऑल मेटल्स दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ये बात हम जानते हैं कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। तो वो कहता है डिस्क्राइब हाउ एटम्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस। तो देखिए एटम्स पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं किस तरीके से। एटम्स पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं बाय व्हाट, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स या गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने ये बात पढ़ी हुई है कि मेटल्स जो हैं वो हमेशा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लूज करके दे फॉर्म द पॉजिटिव आयन फ्रॉम द आउटर शेल्स। तो आउटर शेल्स में से बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट्स पॉजिटिव आयंस। तो उसने जो कि सवाल में पूछा है कि डिस्क्राइब हाउ एटम्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस, तो अब चूंकि देखिए बच्चों मैं आपको, आप पेपर अटेम्प्ट करने के बाद इस पूरे वीडियो को देख रहे हो फॉर हेल्प कि जो जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स हुए उनमें क्या क्या आंसरिंग करनी है, तो अब इनके मैं इसलिए आपको पार्ट बाय पार्ट जरा मार्क्स स्कीम से आंसर्स ऐसे हिडन रखूंगा, सिर्फ जो आप आंसर देख रहे हैं वो मैं भी आपकी तरह इधर से देखता जा रहा हूं। तो ये आप देख रहे हो कि यहां पर आपके पास वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स लॉस फ्रॉम द आउटर शेल। तो हमने भी यही एग्जैक्ट बात की है कि आपका बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर शेल्स। अब देखो इस हद तक ये दो लफ्ज आ रहे हैं ना, उसमें देखो लॉस या लूजिंग एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन लॉस का फ्रेज आपके जवाब में ये दो लफ्ज होने चाहिए, तो लूजिंग या लॉस ये एक ही बात होती है। इस तरह मैं कह रहा था कि आपका फ्रेज मैच होना चाहिए। तो आप अगर ये चलो मार्क्स स्कीम से सीखने के बाद अब हम जहन में रख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम और भी ब्रीफ करना हो तो आप सिंपल बोले इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम द आउटर शेल कॉजेस पॉजिटिव आयंस। लेकिन ये जो इसने ब्रैकेट में दिया हुआ है ना फ्रॉम आउटर शेल, ये ब्रैकेटेड चीज का मतलब है ये ऑप्शनल है, अगर आप लिख दें अच्छी बात है, ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन 1 मार्क का जवाब इस केस में ये होना चाहिए। कहता है नेम बताओ NH4Cl का नाम। तो भाई ये तो देखो ना रिवर्स पूछ रहा है नाम का, ये अमोनियम आयन है और ये क्लोराइड है, तो आपको पता है कि इसका नाम अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड है। देखिए इस तरह की बातें तक पूछ लेता है जो हम बेसिक्स के तौर पे पढ़ा करते थे, तो इसमें इसका मतलब अमोनियम क्लोराइड आपके पास ये कंपाउंड ऐसे आ रहा है। देखो कहता है सल्फर इज अ ग्रुप 6 एलिमेंट।
तो अगर सल्फर एक ग्रुप 6 का एलिमेंट है तो सल्फर यकीनन एक नॉन मेटालिक एलिमेंट होगा। और हमें इसके बारे में कुछ बुनियादी डिटेल्स पता है। अब वो कहता है अ सैंपल ऑफ सल्फर कंटेन्स टू आइसोटोप्स S32 एंड S34। अच्छा जी, वैसे तो आपको इनके प्रोटॉन नंबर्स खुद याद होने चाहिए कि सल्फर का प्रोटॉन नंबर 16 होता है, वरना पीरियोडिक टेबल एंड पे दिया हुआ है होगा, उससे आप चेक कर सकते हो। तो अब वो कहता है कंप्लीट टेबल 5.1 टू शो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ ईच आइसोटोप ऑफ सल्फर। तो गौर करो बच्चों, इधर आप इसके साथ 16 का फिगर खुद से लिख दोगे ऐसे, ताकि अब प्रोटॉन्स की तादाद आपको पता हो। याद है ये जो सल्फर का अब 1632 और ये सल्फर का 1634 है। आइसोटोप्स की डेफिनेशन याद है, these are atoms of the same element having same proton numbers but different mass numbers, या these are atoms of the same element having same number of protons in the nucleus whereas different number of neutrons। जब इनके न्यूट्रॉन निकालोगे माइनस करके तो वो डिफरेंट आएगा। डेफिनेशन इन दोनों रास्तों से देखी जा सकती है, बट आपको पता है कि ये प्रोटॉन नंबर आपको सिर्फ एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है। तो ये तो बेसिक बात थी कि प्रोटॉन्स इसमें 16 होंगे और S1634 वाले में भी प्रोटॉन्स की तादाद, दोनों में देखो, इसमें भी प्रोटॉन 16 है और इस वाले आइसोटोप में भी प्रोटॉन 16 है। बट न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? 32 माइनस 16, यानी इन नंबरों को माइनस करके, याद है, बिकॉज ये नंबर आपको प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स का टोटल बता रहा है। देखिए ये नंबर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का टोटल बता रहा है और ये नंबर सिर्फ प्रोटॉन्स का बता रहा है। तो फिर टोटल सम में से प्रोटॉन्स निकालेंगे तो फिर न्यूट्रॉन्स ही नहीं आ जाएंगे। तो 32 माइनस द 16, आपका ये भी 16 ही आ रहा है, और 34 माइनस 16 तो ये आपका 18 आए। तो देखिए वाकई आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिनके प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। तो अगर आप इसका टेबल फिलिंग, वैसे ही चलो पार्ट बाय पार्ट चल रहा हूं तो साथ साथ ही हम देख लेते हैं कि इसकी टेबल फिलिंग देखिए उसने कैसे की हुई। यहां से देखिए 16 16 16 18, तो हमने भी यही किया, 16 16 16 18, तो ये 2 मार्क्स हमें मिलने चाहिए। तो वो कहता है कि स्टेट द नेम गिवन टू ग्रुप 7 एलिमेंट्स। तो हमें पता है कि ग्रुप 7 एलिमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं? वी कॉल देम हैलोजेंस। सी कहता है ब्रोमीन हैज टू नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, एक Br79 और एक Br81। कहता है स्टेट द टर्म गिवन टू नंबर्स 79 एंड 81 इन दीज आइसोटोप्स ऑफ ब्रोमीन। ठीक है जी। अब मुझे एक बात ये बताइए कि ये जो दोनों नंबर्स डिफरेंट वाले होते हैं, अब वो कौन सी टर्म है विच इज गिवन टू दीज नंबर्स? तो हम इनको क्या कहते हैं? इनको हम न्यूक्लियन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, यू कॉल देम, अब पूरा पूरा लफ्ज लिखो, न्यूक्लियन नंबर्स, या इन्हें मास नंबर्स कह सकते हो, या इन्हें रिलेटिव एटॉमिक मास कह सकते हो, लेकिन बेहतर है इसको न्यूक्लियन नंबर्स, क्योंकि ये तादाद हमें बताता है। तो फिर न्यूक्लियन नंबर बेस्ट लफ्ज है तीनों के लिए। मोल्स में इसका एक मतलब था, तो न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर, इन दो में से। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास इस टाइप के सवाल में अवॉइड इसलिए करो, हालांकि ठीक है बात कोई गलत नहीं है, लेकिन देखें उसने कहा कि इन नंबर्स को वो क्या कहता है, तो हमें पता नहीं ये नंबर्स आपको न्यूक्लियॉन्स की तादाद बताते हैं। तो बेस्ट लफ्ज है, इनको आप न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर बोल। न्यूक्लियन इज द बेस्ट वर्ड आउट ऑफ ऑल दिस। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगले पार्ट 2 में क्या कहता है? कहता है कंप्लीट द टेबल 2.2 टू शो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे ये बताइए कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में कौन कौन से पार्टिकल इसमें होंगे? जरा देखिए, अब ब्रोमीन का बच्चों इधर आपको उसने प्रोटॉन नंबर गिवन नहीं है, तो कहां से पता लगेगा? जरा बताइए, प्रोटॉन नंबर हम कहां से निकाले? ब्रोमीन का तो याद नहीं किया हुआ। यस, जो एंड पे आपको पीरियोडिक टेबल देखो ये दिया हुआ, पीरियोडिक टेबल आपको एंड पे ये दिया हुआ है, इसमें आप ब्रोमीन का यहां से चेक कर ले। जरा देखिए ग्रुप 7 में ब्रोमीन यहां आ रहा है,
यार अब ये गड़बड़ी जरा एहतियात से देखना बच्चों सारे। देखो इसमें ना उसने छोटा नंबर ऊपर और बड़ा नंबर नीचे लिखा हुआ, तो छोटा नंबर प्रोटॉन नंबर होता है ना, तो ये ना हो कि जल्दबाजी में आप फिर इसको भी 80 लिख दो। अब इधर देखो ये 35 छोटा नंबर है, ये प्रोटॉन या न्यूक्लियन नंबर, सॉरी प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर होता है, और बड़ा नंबर न्यूक्लियन नंबर। यस, तो प्रोटॉन नंबर ब्रोमीन का 35 है, तो फर्स्ट 20 के तो याद किए हुए थे, तो उससे टाइम बचेगा, पीरियोडिक टेबल पे देखने की जरूरत नहीं है। बट अब मैं यहाँ ये करता हूँ कि हमने इस टेबल को फिलअप करना है ना, तो मैं यहां से इसके साथ भी 35 लिख देता हूँ। देखिए आई विल राइट 35 इसके साथ भी और 35 इसके साथ। अब मुझे बताइए कि इसमें फिलिंग कैसे करें। प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स इसमें 35 होंगे, ये Br79 में इसमें पूछ रहा है ना। अब मुझे ये बताओ कि अगर, चलो इसको एक मिनट इधर के बजाय ना यहाँ थोड़ा सा वैसे टेबल में गंद मच जाएगा, हम यहाँ साइड पे आ जाते हैं, Br79 और 35। तो अब मुझे ये बताओ कि यार इसमें प्रोटॉन्स 35 है, तो प्रोटॉन्स 35 हो गए। फिर आप इसमें न्यूट्रॉन्स कैसे निकालो। 79 माइनस 35 करो जरा, कितना आता है। 79 माइनस 35 44 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास 44 ये ऐसे आ जाए। बिल्कुल सही है। और चूंकि न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम में व्हाट यू डू, प्रोटॉन्स जितने होते हैं उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो आप यहां से 35 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स लिख दो। क्लियर है। अच्छा अब आ जाइए नेक्स्ट इसके दूसरे केस में कि यहाँ पे अब ये आएगा Br35 और 81 और उसके साथ 1 माइनस है। खाली माइनस का मतलब है, जी जी करेंगे हम, जरा पूरा तरतीब से ही चलेंगे, पूरा पर्चा सॉल्व होगा। हाँ जी, नोट्स पक्के करो, बाकी अभी आगे देखना, मैं कराऊंगा तो खुद पता लग जाएगा कितना मुश्किल था या कितना इजी था। सब आसान है यार, रिविजन ठीक करो, नोट्स पक्के होंगे तो ये सब बड़ा आसान लगेगा। मैं कराऊंगा, सारा पूरा पर्चा ही डिस्कस होगा। अब ज़ाहिर है तरतीब से चल रहा हूँ तो 1 बाय 1 ही हो। जी वैसे हमेशा खाली माइनस का मतलब 1 माइनस ही होता है, लेकिन बेहतर है आपको जब लिखना हो तो आप पूरा लिखा करें। अच्छा आप देखो इसमें प्रोटॉन्स तो अभी भी 35 ही होंगे, इसमें प्रोटॉन्स 35 होंगे, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। 81 में से 35 निकालो, कितना आता है। 81 में से 35 46 है, तो ये 46 आपके पास न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। और अब बताइए कि इसमें 35 में 1 माइनस इलेक्ट्रॉन्स कैसे डालो। 35 तो प्रोटॉन्स थे ना, अगर ये न्यूट्रल एटम होता तो 35 ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते। अब 1 माइनस का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हो, तो टोटल 36 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास इधर 36 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग में ही आ जाए। ठीक है जी। अब ये आपके पास जो है इस तरह से 36 टेबल क्यों फिल होगा। तो जरा जल्दी से इसका टेबल चेक कर लेते हैं कि जी इसके भी 3 मार्क्स हमारे पास ऑब्टेन हो चुके कि नहीं। तो ये देखिए, ये टेबल को मैच करो जरा इसके साथ, 35 35 44 46 35 36, तीनों कॉलम्स 1 मार्क फॉर ईच रो। अब वो देखो कह रहे हैं कि ईच रो का एक नंबर देना है, तो अगर ये दोनों देखो ये 35 35 दोनों करेक्ट हैं, तो आप इधर से इसको एक नंबर इसका दो। फिर देखिए अगर आपके पास ये 44 46 करेक्ट है, इधर चेकिंग भी सिखा रहा हूं ताकि आपको फिर खुद भी अब चेकिंग करनी आती हो। और इसी तरह से अब देखिए कि यहाँ पे 35 36 है, तो ये आपके पास आ जाएगा इधर से ऐसे 1 मार्क। कहता है द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर शोन। वैसे बच्चों जरा एक क्विक रिकॉल दो कि ये जो पीरियड 3 होता है, देखिए पीरियड 3 जो है, मुझे ये बताइए पीरियड 3 की क्या खास बातें आपने पढ़ी थी। पीरियड 3 के हर एलिमेंट के नंबर ऑफ शेल्स भी कितने होंगे, बता सकते हो। पीरियड 3 के हर एलिमेंट के नंबर ऑफ शेल्स, बिल्कुल सही है। आपको याद है ना, पीरियड नंबर आपको नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है, तो जितने उसके पीरियड नंबर होगा उतने उस एलिमेंट में शेल्स होंगे। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि जी ये ना आपके पास पीरियड 3 का, याद है ना पीरियड HP यानी हॉरिजॉन्टल्स आर पीरियड्स, तो थर्ड पीरियड का मतलब है कि ये आपके पास
थर्ड पीरियड के तमाम मेंबरान ये लिखे हुए, दिस इज पीरियड नंबर 3। तो एक बात तो हमें समझ आ गई कि इन सब में 3-3 शेल्स। अच्छा, अब वो कहता है कि आंसर द फॉलोइंग, देखो इंस्ट्रक्शंस बड़े गौर से पढ़ो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट दीज एलिमेंट्स, यानी ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कह रहे हैं इनके बारे में जवाब यूज करके दो। और कहता है ईच सिंबल मे बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। इस बात का मतलब पता है ना, कि कहता है कि ईच सिंबल को, यानी इनमें से हर आंसर एक बार भी आ सकता है, दो सवालों का जवाब भी सेम एलिमेंट हो सकता है, और कोई ऐसे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो बिल्कुल किसी जवाब में इस्तेमाल ही ना हो, ये मतलब है। लेकिन आपने आंसर किस फॉर्म में करना है, जवाब दो। देखिए उसने बोला हुआ भी, राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। क्या लिखना है बच्चों बताइए। देखिए मैं आपको ना अब साथ साथ जरा ये भी बताता जा रहा हूं कि वो क्या कह रहा है, राइट द सिंबल। अब हाईलाइटिंग मैं इस तरह करूंगा, देखिए कि आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स की हाईलाइटिंग इस तरह से समझ आए। जरा बताइए सिंबल आपने निकालना है, तो सिंबल का क्या मतलब है कि अब इनमें से कोई एक बताना है आपने। कहता है कि विच एलिमेंट फॉर्म्स अ स्टेबल आयन विद अ 2+ चार्ज। देखिए अब अगर आपको ये पता हो, याद हो कि सोडियम 1+ है, मैग्नीशियम 2+ है, एल्यूमिनियम 3+ है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होगी, फास्फोरस 3- बनाता है, सल्फर 2- बनाता है, क्लोरीन 1- बनाता है, आर्गन की वैलेंसी 0 है। देखो उसने हमसे किसी एक की पूछी थी, हमने सारी अपनी नॉलेज पे बेस करके वो बता दी। तो मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा फॉर्म करता है स्टेबल आयन विद 2+ चार्ज। हमने जवाब सिंबॉलिक फॉर्म में देना, मैग्नीशियम। देखिए यार आपने ना प्लीज, मैं ये देखिए मुझे तो चले अब कर करके ये जवाब रट ही गए हुए सारे, लेकिन आपको ना ये मैं सिर्फ आपको एक जेस्चर देने के लिए कि देखिए मार्क्स स्कीम्स कितनी जरूरी चीजें हैं, कि आपने जब आपकी ये पूरा सवाल पेपर अटेम्प्ट हो जाता है तो चेकिंग जब करते हो करेक्ट गलत का, तो इसको जरूर साथ साथ देखा करो। तो देखिए मैग्नीशियम वाकई में इधर आता है, तो आप इधर से टिक मार्क लगा के अपने आप को 1 मार्क ये यूं दे रहे हो। तो व्हाट इज मेंट बाय द टर्म आइसोटोप्स। देखिए जी जरा इसका ना, आपको वैसे तो एक बात बताइए, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, they are the atoms of the same element which have same proton number and different mass number, या दूसरे लफ्जों में atoms of the same element having same number of protons but different number of neutrons। तो अब मुझे बताइए कि ये चीज देखो इसने अब मार्क्स स्कीम में कैसे लिखी हुई, जरा ये देखो। कहता है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, देखिए एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसने तो फिर देखो बड़ी लीनियंट, जी जी ये मैं वैसे ही बात बता रहा हूँ, जरा पूरी फुल थॉरो पहला पर्चा फुल डिस्कस करूंगा जी विद रिकॉल्स, ये ताकि सबको ये बातें समझ आए। तो उसने तो फिर ये लिखा है, तो हम इसमें पूरा लिख देते हैं कि जी दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। देखिए एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग, बल्कि मैं एक मिनट जगह जरा तंग होगी तो इसको बुलेट पॉइंट्स में ना लिखें, पूरा पूरा लिखें, हैविंग atoms of the same element having same number of protons। देखो NO ना लिखना, पूरा लिखना है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए अब इसी बहाने ना GCE वालों का भी सारा फुल रिकॉल हो रहा है, बट उनको फिर मैं उनकी ईयरली प्रॉब्लम्स जो है वो कल से शुरू कराता हूं, ठीक है जी। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या ख्याल। आप जरा देखिए, कहता है स्टेट द न्यूक्लियन नंबर ऑफ मैंगनीज। बताओ, अब देखो मैंने क्या कहा था कि ये वो आपसे पूछ सकता है। अब जरा बताइए बच्चों, न्यूक्लियन नंबर एक्चुअली किसको कह रहा है। न्यूक्लियन नंबर याद है वो किसको कहता है। न्यूक्लियन नंबर मास नंबर को या रिलेटिव एटॉमिक मास को कहते हैं, वो जो बड़ा वाला नंबर होगा रिलेटिव एटॉमिक मास। बच्चों याद रखिए, ये
न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर या रिलेटिव एटॉमिक मास, ये उन दोनों नंबरों में से बड़ा वाला नंबर होता है या छोटा वाला? अब देखिए यहाँ एक कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हमसे होगा। देखिए आपको पीरियोडिक टेबल का ना सैंपल इसने एंड पे यूं ये दिया हुआ होता है, यहाँ देख रहे हो, मैं पीरियोडिक टेबल के सैंपल पे यहाँ आ चुका हूं। मैंगनीज जो है वो ये वाला यहाँ पड़ा हुआ, मैंगनीज देखो यहाँ पड़ा हुआ। अब देखो जल्दबाजी में, वैसे ऑनेस्टली कितनों ने इस चक्कर में कि यार शायद रिलेटिव एटॉमिक मास या मास नंबर जो है वो हमेशा ऊपर ही लिखा होगा, तो मैं 25 लिख लेता हूं। कितनों ने ईमानदारी से बताइए ये गलती की? देखो किस तरह हम एक एक नंबर इंशाल्लाह बचाएंगे। हाँ जी, अब ये गलती देखिए 2-3 बंदे की हो गई। तो आपने ये याद रखना है कि मैंगनीज में देखो यार, ये कई दफा ना ये ट्रिक करता रहता है कि नंबरों को ऊपर नीचे स्वैप करता है। जी पीरियोडिक टेबल अब्दुल्ला इसमें गिवन होगा। यार ये सीधा असल में हो नहीं पाएगा, इसको ऐसे थोड़ा सा मोबाइल आप ऐसे करना या लैपटॉप, नजर तो आ रहा है वैसे। तो देखिए इसमें मैंगनीज में ये 25 और ये 55 है, ये 25 और 55, ठीक है, ये 25 और 55 ये ऐसे दिया हुआ। क्या ख्याल? तो इसमें से कौन सा न्यूक्लियॉन नंबर होता है भाई? ये 25 छोटा वाला नंबर ये प्रोटॉन नंबर है या एटॉमिक नंबर है? दिस इज प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर। देखो इसने इधर की भी दी हुई है, ये की पे गौर करो, ये की पे गौर कर रहे हो? वो कह रहे हैं ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर है और नीचे रिलेटिव एटॉमिक मास। समझ आई? तो ये याद रखना, वैसे भी आपको पता है कि बड़ा नंबर वो होता है। तो इसका 55 होगा मैंगनीज का। पीरियोडिक टेबल से हमने देखा तो ये आपके पास कितना आ रहा है न्यूक्लियॉन नंबर। इसका सिर्फ स्टेट का मतलब होता है डायरेक्ट बस लिखना। तो इसको जरा मार्किंग स्कीम से चेक करते हैं। देखिए देखिए मार्किंग स्कीम अब ये हालांकि मुझे रट चुकी हुई है, लेकिन मैं आपको लिए एक जेस्चर के तौर पे ये कर रहा हूं ताकि आपको पता हो कि भाई ये आंसर्स पीछे से चेक करना उतना ही अहम है जितना आपका पर्चा सॉल्व करना। मार्किंग स्कीम जितना आपको इम्प्रूव करवाएंगी ना, उतना मैं भी शायद ना करा सकूं। तो यूं कह लें कि इस वक्त आपकी मार्क स्कीम मैं हूं कि आपके साथ जवाब सवाल कर रहा हूं, लिख रहा हूं, बता रहा हूं। ठीक है जी, क्या ख्याल है बच्चों? अब देखिए उसने 55 जवाब लिखा हुआ। हाँ ये तो सही कह रहे हो, क्योंकि ये जो मार्क स्कीम की तो बात ही और है, वो तो जाहिर है वेरीफाइड डिस्कस्ड आंसर है। वो जाहिर है हमने मीटिंग में बैठ के डिस्कस करके जवाब निकाले हैं, तो उसकी तो क्वालिटी और हो। नहीं वो मैं समझ गया हूँ आपकी, आपका मतलब समझ गया हूँ, लेकिन मैं कोई इशारा दे रहा हूँ, शायद समझ नहीं आया किसी को। देखो शुरू हो गए सारे। अच्छा देखो मैं मेहनत करना चाह रहा हूँ, तो वो जनाब जो है ना सब चाह रहे हैं कि बस शॉर्टकट में कोई पता लग जाए कि पर्चा है क्या। इस साल की मार्क्स भेज दूं? यार ये तो फिर अल्लाह के साथ वादा किया हुआ है वो गलत हो जाएगा। तो बहरहाल ये जो मैं करा रहा हूँ समझो यार, ये पर्चे ही आप कर रहे हो, तो बस अपनी ये ईयरली अच्छी क्वालिटी से करें। ओनली फॉर काउंटर चेक, अच्छा। अब जरा मुझे देखिए जी, इसमें सवाल में देखिए, कहता है कंप्लीट द टेबल टू शो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन अ CR3 पॉजिटिव। याद है यार वो शुरू शुरू के मॉक्स में तो ये बातें पूछ पूछ के मैं जान खा गया। ठीक है, तो ये बातें तो पूछ पूछ के मैं आपसे कर गया था। तो इसमें ये जो छोटा नंबर है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता रहा है 24। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन्स याद है, अब देखिए क्रोमियम का न्यूट्रल एटम विल हैव 24 प्रोटॉन्स एंड 24 इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम। बट 3+ मीन्स के ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके बैठा हुआ है। तो 24 में से 3 लूज कर चुके हैं, तो कितने बचे?
21 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। तो इलेक्ट्रॉन्स 21 होंगे। अच्छा, जल्दबाजी में किसी ने न्यूट्रॉन की हेडिंग में तो नहीं है 21 इलेक्ट्रॉन लिख दिए जल्दी में? वैसे एनीबडी हु डिड दिस मिस्टेक? देखिए ना, अब ये चीज ख्याल रखनी कि प्रोटॉन्स 24, इलेक्ट्रॉन्स 21, हर एक को अपनी अपनी हेडिंग में लिखना है। कहीं गलत लिख दिया तो गए फिर। अब ये अच्छा, न्यूट्रॉन्स कैसे आएंगे? 52 में से 24 उड़ा दो, तो 52 में से 24 उड़ाओ, ये कितना आता है? ये 28 आ जाएगा। तो मुझे बताइए 52 में से 24 उड़ाओ, 52 में से 24 उड़ाओ तो ये 28 आ जाए। देखो, फ्री के 3 मार्क्स हैं। कहता है हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो ये तो आप सबको पता है कि देखिए इस वक्त मैग्नीशियम का, अब देखें अगर मैंने इसका ये जो नंबर्स लिखे हैं ना, ये अपनी हेल्प के लिए लिखे हैं, ठीक है जी। 1327 है, सिलिकॉन 1428 है, फास्फोरस 1531 है, सल्फर 1632 है। अब ये बातें तो देखो आपको डायरेक्ट भी याद होंगी, जो मैंने आपको पूरी प्रैक्टिस थ्रू आउट द सेशन करवाई, कि देखिए सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं तो 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस हिसाब से तो 281 है। इसके तो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इसमें 12 प्रोटॉन्स हैं तो 12 ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 282 है। तो इसी के आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है जी। जी बिल्कुल, उस तरह भी आप बता सकते हैं। तो हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। वैसे भी आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्रुप नंबर से ही पता चलता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि उसके लास्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो ग्रुप 2 का ही मेंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो इधर आ जाएगा आपका जवाब, यहाँ पे आप लिख देंगे इसमें मैग्नीशियम। याद रखिएगा उसने कहा राइट डाउन द सिंबल, राइट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। तो आपने फिर सिंबल में ये चीज करनी है। अब वो कहता है कि इट फॉर्म्स एन आयन विद 2 माइनस चार्ज, फॉर्म्स एन आयन विद 2 माइनस चार्ज। बच्चों एक बात बताओ, आपको पता है सोडियम का चार्ज तो Na1 पॉजिटिव होता है, फिर मैग्नीशियम का चार्ज Mg2 पॉजिटिव होता है, फिर एल्युमिनियम का चार्ज Al3 पॉजिटिव होता है। ये मैं रिकॉल्स की नियत से करा रहा हूं जी। एल्युमिनियम भी मैलिएबल है, हर मेटल मैलिएबल होता है। कोई भी मेटल जिसको शीट्स में हैमर करके आप कन्वर्ट कर सकते हो वो मैलिएबल होता है। तो तमाम मेटल्स मैलिएबल हैं, इसलिए इस पहले ए वाले केस में आप इसका, इसका या इसका किसी का भी जवाब लिख सकते थे, ठीक है। तो अब देखिए फॉर्म्स एन ऑक्साइड विद 2 माइनस चार्ज। अब बच्चों देखो सिलिकॉन का तो आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में होते हैं, तो ये Si का वैलेंसी 4 आता है। फास्फोरस के लास्ट में 5 होते हैं तो ये 3 गेन करता है, इसका 3 माइनस है, याद है। फॉस्फाइड आयन, ये वैसे रिकॉल्स दे रहा हूं। सल्फर का S2 माइनस है, याद है, ये सल्फाइड आयन। क्लोरीन का Cl1 नेगेटिव, ये क्लोराइड आयन बनाता है। और आर्गन इज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप 8, तो ये तो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, ये ना तो गेन करते हैं ना ही लूज करते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? क्यों जी? अब आओ जरा बच्चों, तो फॉर्म्स एंड देखिए, कहता है कि पीरियड 3 तक दिया हुआ है कि आपने सिंबल्स लिखने। देखो ये गड़बड़ बस की है आपको से। अब अगर उसने सिंबल कहा है और आप पूरा नाम लिख देते हैं तो मार्क काटेगा जी। सॉफ्ट मेटल्स चाहे वो ग्रुप 1 के हों, 2 के हों, 3, वो सब मैलिएबल। सॉफ्ट तो खुद सोचो ज्यादा अच्छा मैलिएबल होगा, हल्का सा हैमर मारोगे वो प्रेस हो जाएगा शीट। अच्छा, तो 2 माइनस का चार्ज कौन बनाता है फिर इसमें? अपने अपने रिस्पॉन्स देते जाइएगा बच्चों, जरा पार्टिसिपेट इधर भी करना है मेरे साथ। यस, तो इसमें सल्फर, तो सी आपका जवाब 2 दफा रिपीट हो रहा है, तो सल्फर का सिंबल S लिखेंगे जी। अब ये बात चलो अब बता दी है, तो अगर आपने मॉक में फुल नेम भी लिखा है तो फिलहाल मान लूंगा, लेकिन CIEs में वो नहीं मानेगा। जरा गौर कीजिए,
वो कहता है कि सिल्वर हैज द एटॉमिक नंबर ऑफ 47। बच्चों कहता है नेचुरली अकरिंग एटम्स ऑफ सिल्वर आर Ag107, Ag दिया हुआ है आपको, कहता है 107, और दूसरा Ag दिया हुआ है 109। ठीक है, तो अब वो सवाल में कहता है स्टेट द नेम गिवन टू एटम्स। अब मुझे ये बताइए, कहता है कि स्टेट करें द नेम गिवन टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, state the name given to atoms of the same element with different nucleon numbers। ठीक है, तो अब सवाल ये था कि आपने स्टेट करना है द नेम गिवन टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट न्यूक्लियन नंबर्स। बिल्कुल, तो आप बता सकते हो। अब देखो डेफिनेशन में क्यों पूछता था टेस्टों में, बिकॉज वो डेफिनेशन को खुद बता के उसका वो मेन वर्ड पूछ सकता है जी। तो देखिए, वो state the name given to atoms of the same element with different nucleon numbers, तो इनको कहा जाता है फिर आइसोटोप्स। याद है? अब देखो इधर साइड पे मार्किंग स्कीम में आपको आइसोटोप्स का लफ्ज दिया हुआ है। ठीक है, आइसोटोप्स की डेफिनेशन। अच्छा जी, अब आप कह रहे हो व्हाई नॉट एलोट्रोप्स। यार अब ये तो डेफिनेशन जरा, अब देखो ये आपने को अगर नहीं याद आ रही ना, तो आप इसको साइड पे लिख लो, पॉइंट्स दैट आई फॉरगेट में। बच्चों सब बच्चे एक लूज शीट बनाइए, पॉइंट्स दैट आई फॉरगेट में। तो पॉइंट्स दैट आई फॉरगेट में ये लिखते रहना, जो जो बातें आपको अभी मैं बता रहा हूँ और आपको बिल्कुल सपोज भूली हुई थी। ये भी बड़ी अच्छी टेक्निक होती है कि फिल्टर आउट हो जाता है यार, क्या क्या मुझे पक्का करना है जी। आप कह रहे हो व्हाई नॉट एलोट्रोप्स, तो एलोट्रोप्स की डेफिनेशन याद है? जरा पहले चलो आइसोटोप्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। हमने कहा था आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट with the same proton number but with different nucleon numbers। तो देखो ना, अब इसमें देखो, इस सिल्वर का 107 है और इस सिल्वर का 109 है। बच्चों आप लोगों को वीडियो बहुत स्टक होकर या फंस फंस कर तो नहीं आ रही? अच्छा सही आ रही। चलो मेरा नेट थोड़ा सा अनस्टेबल है, शायद मेरे उससे थोड़ा मसला आ रहा है। खैर चलिए, तो अब देखो ना, ये दोनों हैं सिल्वरी, बट एक का 107 है, एक का 109 है। ठीक है जी, तो अब जरा देखिएगा कि वो कहता है कि कंप्लीट द टेबल। अच्छा, तो अब एलोट्रोप्स की डेफिनेशन क्या थी? देखिए एलोट्रोप्स की डेफिनेशन, आप कह रहे हो जी एलोट्रोप्स, इसका जवाब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एलोट्रोप्स आर दो सब्सटेंसेस who have the same chemical properties but different physical properties। तो ये तो कहानी अलग है। जैसे कार्बन का दो एलोट्रोप्स डायमंड और ग्रेफाइट है। केमिकली देखो, डायमंड भी कार्बन सॉलिड है, ग्रेफाइट भी कार्बन सॉलिड है, लेकिन इनका फिजिकल अपीयरेंस आपने देखी है कितनी मुख्तलिफ है। हाँ जी, तो डेफिनेशनों को क्लियर करें। अब बच्चों जरा गौर से देखिएगा कि वो कहता है, सी सेज complete the table to show the number of protons, complete the table to show the number of protons, neutrons and electrons in each atom, in each atom and ion of silver shown। तो आपने एटम और आयन में ये शो करना। जरा मुझे बताइएगा
ये सिल्वर 147 और 107 है, और ये सिल्वर 1 प्लस 47 और 109। तो मुझे ये बताइए बच्चों कि सिल्वर में प्रोटॉन्स कितने हैं? 47 जी। न्यूट्रॉन्स, अब ये मैं सिल्वर Ag 147 और उसमें कर रहा हूं, तो उसमें प्रोटॉन्स 47 है। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, याद है? न्यूट्रॉन्स 107 और 47 को माइनस करें तो कितना आता है, ये जरा बताइए। तो ये आएगा 60, ये ऐसे फिल कर देंगे आप। ठीक है, अब इससे ना आपको जरा फिलिंग विलिंग सब समझ में आना शुरू होगी कि ये कैसे होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? क्योंकि बच्चों देखो ये एटम ऑफ सिल्वर है ना, तो एटम्स इनिशियली न्यूट्रल होते हैं। ये नंबर तो एक्चुअली प्रोटॉन्स बता रहा है 47, बट इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 47 ही होने चाहिए। समझ रहे हो? अच्छा, अब जरा बताइए कि सिल्वर का 47 और 109, अब ये जरा गौर से देखिएगा बच्चों कि दिस इज अ 1 प्लस का आयन। तो सिल्वर 47 और 109 स्लाइड सा फर्क होता है, मई जून अक्टूबर नवंबर की लेवल ऑफ डिफिकल्टी में स्लाइड फर्क, कोई इतना ज्यादा नहीं। प्रैक्टिस करके जाओ तो वो भी आसान है, ये पढ़ो तो वो भी आसान। अब देखिए सिल्वर जो है 1 प्लस का चार्ज बनाता है ना बच्चों, ठीक है। मई जून रिलेटिवली थोड़े इजियर होते हैं, 19-20 का फर्क है यार, कोई ज्यादा नहीं। मई जून थोड़े रिलेटिवली इजियर होते हैं, अक्टूबर नवंबर एक आधा डिग्री थोड़ा, कोई एक आधा सवाल ट्रिकी हो जाता है, अदरवाइज बहुत सिंपल है सारा कुछ। नहीं नहीं, सारा कुछ सेम है भाई, ठीक है। मई जून में उस लिहाज से फिर कॉम्पनसेशन हो जाती है सारी। यार एक तो मैं एक स्टेटमेंट बोल देता हूँ, 2-4 बंदा परेशान हो जाता है। ओ भाई सब कुछ कट कॉपी है। अभी मैं चलो अक्टूबर नवंबर के भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, बताना उसमें क्या इतनी कोई जनाब कोई माउंट एवरेस्ट पार करने वाली बात है, कोई रीजन नहीं होती हो भाई, कोई फर्क नहीं है। मैं अभी बात लंबी खींच रहे हैं हम लोग। देयर इज नो डिफरेंस इन मई जून अक्टूबर नवंबर, ठीक है। बस सिर्फ ये होता है कि अक्टूबर नवंबर हम सजेस्ट करते हैं कि आप जस्ट तब दिया करे बच्चा कोई कि जिसने कोई इंप्रूव करना हो, रीटेक करना। वैसे अब इस बार जैसे जून जुलाई में आप तैयारी का टाइम कर लें तो फिर ए लेवल्स भी उम्मीद है इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। डी पेपर में पीरियड टेबल मिलता है। चलिए जी, अब मुझे बताओ कि एजी इसका क्या करें। अब देखो यार, इसमें प्रोटॉन्स तो आयन के अंदर भी 47 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? अब याद है, अगर ये न्यूट्रल सिल्वर होता तो इसमें 47 प्रोटॉन्स और 47 इलेक्ट्रॉन्स होते, लेकिन 1 प्लस का चार्ज बना रहा है, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसमें से एक हो गया, तो ये 47 प्रोटॉन्स हैं और 46 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए कि यहाँ पे ये आपके पास 46 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है जी। ये 46 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? 109 माइनस 47, नहीं 109 माइनस 47 कितने होते हैं? 62। ओ सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। हाँ एक मिनट, इलेक्ट्रॉन्स में 46 लिखना था, जी जी, और प्रोटॉन्स में सॉरी न्यूट्रॉन्स में 62। देखो ना, ये न्यूट्रॉन्स का कॉलम, ये प्रोटॉन्स का कॉलम, और ये इलेक्ट्रॉन्स का कॉलम, जी। तो इज दिस क्लियर टू यू? कहता है which element has atoms with only 2 electrons in its outer shell? इनमें से किसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल होगा? देखिए बच्चों, आप सब लोगों को ये पता है कि ये लिथियम 3 एंड 7 है। अब देखिए लिथियम 3 7 है, बेरिलियम 4 एंड 9 है, बोरॉन 5 11 है, कार्बन 6 12 है, नाइट्रोजन 7 14 है, ऑक्सीजन 8 16 है, फ्लोरीन 9 19 है, नियॉन 10 20 है। देखो इन नंबरों को याद रखने का बड़ा फायदा है। अब सोचिए कि ये जो बेरिलियम था, देखो ये पीरियड नंबर तो 2 है, याद है, दिस इज P2, पीरियड नंबर 2।
लेकिन ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 का मेंबर है, ये ग्रुप 3 का मेंबर है, ये ग्रुप 4 है, ये ग्रुप 5 है, ये ग्रुप 6 है, ये ग्रुप 7 है, ये ग्रुप 8 है। तो ग्रुप 2 वाला जो मेंबर होगा, देखिए ग्रुप 2 वाला जो मेंबर होगा, क्या इसी के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे? तो इसमें सिंपली आपको यहाँ पे लिखना था बेरिलियम। देखिए ये नंबर्स हम सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए लिख रहे थे, बट आपको ये बात डायरेक्ट भी आनी चाहिए। अब वो कहता है विच एलिमेंट हैज एटम्स विद ओनली 7 प्रोटॉन्स। कहता है कौन सा एलिमेंट है जिसके एटम में 7 प्रोटॉन्स है खाली। तो मुझे ये बताएं कि इनमें से किसका प्रोटॉन नंबर 7 है? वो तो नाइट्रोजन का ही नहीं आता। क्यों जी? ना, फ्लोरीन तो देखिए, फ्लोरीन इज F919। तो याद रखें नाइट्रोजन का 7 प्रोटॉन नंबर है, तो इसी में फिर 7 प्रोटॉन्स भी होंगे। ये बात समझ आ रही है कि दिस इज बेसिकली नाइट्रोजन, कि जिसमें आपके पास ओनली 7 प्रोटॉन्स। व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड? तो मैग्नीशियम फ्लोराइड का फॉर्मूला जो है वो तो MgCl2 होगा। मैग्नीशियम फ्लोराइड का फॉर्मूला फ्लोराइड का है उसमें, तो मैग्नीशियम फ्लोराइड का फॉर्मूला होगा MgF2। मैग्नीशियम फ्लोराइड इज MgF2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, जरा आप देखिए, कहता है सोडियम Na1122, Na1123, Na1124, ये तीनों आइसोटोप्स हैं। सोचिए बच्चों, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स जो हैं वो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट ही होते हैं। देखो ना, ये सोडियम सोडियम सोडियम, तीनों सोडियम ही के एटम्स हैं जिनका प्रोटॉन नंबर सेम है। देखो इफ यू वॉच क्लोजली, तो प्रोटॉन नंबर इसका भी 11, इसका भी 11, इसका भी 11। मास नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, तो वो कहता है ये आइसोटोप्स ऑफ सोडियम है। ठीक हो गया, तो अब मान लेते हैं इस बात को। आगे कहता है कि डिस्क्राइब हाउ दीज सोडियम आइसोटोप्स आर द सेम एंड हाउ दे आर डिफरेंट in terms of total number of protons, neutrons and electrons. तो सेम ये किस तरह है? सेम ये इस तरह है कि they have the same number of protons in the nucleus as they have same proton number. तो इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम है। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, they have the same number of protons and electrons भी कह सकते हैं, क्योंकि उसने उस टर्म्स में पूछा है। जी कर दें तो अच्छे। और अब कहता है कि डिफरेंट ये किस तरह, कि इनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट बिकॉज उनका न्यूक्लियन नंबर मुख्तलिफ है। जरा देखो इस चीज को भी सीखते जाते हैं साथ साथ कि वो क्या बोल रहे हैं। तो देखिए इसमें उसने हमें जवाब दिया है कि प्रोटॉन्स आर द सेम या /11 प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर द सेम /11 इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। तो सेम वो किस तरह, दोनों को इस तरह से आपने मेंशन करना है। उसकी वजह यह है कि देखिए इधर उसने क्या कहा है, इधर ही सेड के इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ईच, उसके लिहाज से बताएं। तो आपको फिर इधर से ये लिखना चाहिए था कि दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जी, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। चले मैं इसको, अगर और आप कहते हो थोड़ा सा मजीद इजीली और क्विकली लिख लेते हैं इसको ऐसे। आप यूं कर दो सिंपली कि जी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम ये इस तरह के इन सब में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, इन द न्यूक्लियस, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़ाहिर सेम होंगे। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, और डिफरेंट किस तरह इसमें कि दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
तो न्यूट्रॉन्स इनमें डिफरेंट होंगे। जी वो भी यही बात है, मैंने थोड़ा नीट करके लिखा है, वो जरा कटिंग वटिंग ज्यादा हो रही। ठीक है। ओ हाँ सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन्स आर इन द शेल्स। तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ये बेहतर होता है, चलें इनकी लोकेशनिंग हम बताते जाएं, जगह भी है तो। जी बिल्कुल ठीक है, अब सही होगा। जी पहले वाला भी यही बात थी यार, वो जरा असल में कटिंग ज्यादा होगी तो मैंने उसको दोबारा रीराइट किया, बेसिकली एक ही बात है। तो देखो ना 3 मार्क्स थे, तो इसमें एक नंबर इस बात का मिल रहा है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दूसरा मार्क सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये पूछा है। अच्छा अब जरा ये कहता है why do all three isotopes have an overall charge of 0? Why do all three isotopes have an overall charge of 0? किसी भी एटम पे ओवरऑल चार्ज 0 हो तो इसका क्या मतलब होता है? बिकॉज उनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स देखो क्या होते हैं, सेम होते हैं। आपको चार्ज 0 इसलिए होता है कि दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो चार्ज एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। तो देखिए सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों लेट्स बिगिन आईजीसीएसई का केमिस्ट्री थ्योरी एक्सटेंडेड मई जून 2019 फॉर 1 hour and 15 minutes। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो। जी जी, अब देखिए कहता है द नेम्स ऑफ 8 सब्सटेंसेस आर गिवन। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आइंदा ना जूनियर्स को लाजमन प्लीज आपने ये एडवाइस करनी है कि केमिस्ट्री फिजिक्स बेस्ट आईजीसीएसई से दिया करें, मैथ्स जीसीई से बेहतर रहता है। तो इन एवरी सेंस वो ज्यादा अच्छा है। बहरहाल जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो इंशाल्लाह आपको हो जाएगा। चलिए जबरदस्त। अब देखें कहता है कि जी द नेम्स ऑफ 8 सब्सटेंसेस आर गिवन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एथेनॉल, नाइट्रोजन, आयरन 3 ऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन 4 ऑक्साइड। कहता है बच्चों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट दीज सब्सटेंसेस, ईच सब्सटेंस मे बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। अब वो कहता है कि देखिए which substance is, state which substance, state which substance is the main constituent of natural gas, state which substance is the main constituent of natural gas। तो मुझे एक बात बताइए कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस क्या होगा? तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ है? वैसे तो नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होगा? मीथेन। ना 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 ना, ये जो लोग आप कह रहे हो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कहाँ से आ गया? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस बोला है भाई। नेचुरल गैस, एक छोटा सा अपडेट लिखो, नेचुरल गैस असल में हम मीथेन को ही कहते हैं। ये जो हमें घरों के चूल्हों में गैस आती है नेचुरल गैस, इसको कह रहे हो, एयर तो नहीं कह रहे। एयर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन है, बट नेचुरल गैस मीथेन इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल गैस। यानी नेचुरल गैस में कुछ और कंपोनेंट भी होंगे, बट मेन कंपोनेंट उसमें मीथेन ही होता है। ये जो घरों में हमारे चूल्हे में गैस आती है इसको नेचुरल गैस यानी मीथेन कहते हैं। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इसका कौन है फिर? इनमें से मीथेन ही है। तो आप लोगों ने, अच्छा अब उसने देखो बात सुनो, डिड ही स्पेसिफाई कि नेम लिखना है या क्या? उसने सिंपली बोला ना स्टेट विच सब्सटेंस। तो फिर जो एग्जामिनर का ट्रेंड हो उसने जिस तरह से नाम दिए मैं आप भी उसी तरह दो। तो अब आप इधर लिख दोगे इस तरह कि दिस इज मीथेन। ये बात सबको क्लियर है बच्चों? ये जो 2-3 लोग नाइट्रोजन कह रहे थे वो सवाल गौर नहीं कर रहे हो। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर नहीं कहा। अगर वो कहता व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, तो फिर तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर नाइट्रोजन है और सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है। लेकिन इधर वो कह रहा है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस,
तो वो तो मीथेन होगी। अब जरा चलिए, कहता है विच सब्सटेंस इज अ रिएक्टेंट इन रेस्पायरेशन। रिएक्टेंट इन रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन में आपको याद है कि हमारा जो ग्लूकोज यानी फूड सब्सटेंसेस हैं C6H12O6, चले मैं आपको एक रिकॉल यहाँ दे देता हूँ बच्चों। रेस्पायरेशन का आप लोगों ने पढ़ा था ना कि रेस्पायरेशन का ये जरा रिकॉल देखो। सी रेस्पायरेशन में हमें ये देखना था कि जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो फूड बर्न करके बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O एंड प्लस एनर्जी इज रिलीज्ड। याद है? तो जो हमारी एक्सेल्ड एयर है उसमें इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर कंटेंट बहुत होता है। ये उस चैप्टर की बात है ना, जो रेस्पायरेशन हमने नहीं पढ़ा था, ऑक्सीजन के जो प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स के चैप्टर में, मेटल्स नॉन मेटल्स के चैप्टर में ऑक्सीजन का जो टॉपिक था, ऑक्सीजन के टॉपिक में याद है प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन में एक था रस्टिंग, एक रेस्पायरेशन, एक कंबस्शन, वहां हमने ये सब पढ़ा था। तो ये ग्लूकोज यानी फूड सब्सटेंसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होंगे इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ठीक है जी। तो रेस्पायरेशन में रिएक्टेंट एक कौन है इनमें से? रिएक्टेंट कौन है? सी इनमें से रिएक्टेंट रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि आप इसको यूं लिख दोगे पूरे पूरे वर्ड्स में कि दिस इज ऑक्सीजन। अब आगे कहता है इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉक्साइट। याद है बच्चों, आप सबको पता है कि बॉक्साइट उस ओर का नाम है जिसमें से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होती है। तो ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड। तो एल्यूमिनियम किस ओर से एक्सट्रैक्ट होती है? बॉक्साइट ओर से। और बॉक्साइट कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस इम्प्योरिटीज को ना, बॉक्साइट कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस इम्प्योरिटीज। याद है? और मतलब इम्प्योरिटीज है। तो बॉक्साइट का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट फिर कौन हुआ? इम्प्योरिटीज तो थोड़ी होंगी, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है। तो आप याद रखिए कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है। तो आपने इधर से कौन से वाला हमने लिया? ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अब इधर आपने मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉक्साइट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है जी, खाली एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, अब वो कहता है कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। यार बच्चों, ये रेस्पायरेशन और ये फोटोसिंथेसिस चूंकि दो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है, तो इनको मैंने केमिस्ट्री में जितनी डिटेल बताई थी वो आप याद रखें। अच्छा, फोटोसिंथेसिस आपको याद है, इट इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन में चेंज होता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? किसी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर और वाटर फ्रॉम द सॉइल, इसको एब्जॉर्ब करके प्लांट्स सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, याद आ रहा है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यहाँ क्या प्रोड्यूस करते हैं? यहाँ वो प्रोड्यूस करते हैं, मेरे पास तो जगह नहीं है, मैं चलो इधर आ जाता हूँ। दे प्रोड्यूस देयर फूड, द एनर्जी गिविंग सोर्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, तो जब ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, तो मुझे एक बात बताइए कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब ये प्रोड्यूस करेंगे, तो दिस इज फोटोसिंथेसिस। तो अब बताओ, एक प्रोडक्ट कहता है इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्रोडक्ट में तो या ग्लूकोज है और एक ऑक्सीजन है। तो इनमें से कौन सा हमें इधर दिखा हुआ है? ग्लूकोज तो यहाँ कहीं भी नहीं है, ग्लूकोज तो कहीं भी नहीं है। तो कौन है? ऑक्सीजन ही है। बात समझ रहे हो? तो उसने कहा था ना, यू कैन यूज एनी सब्सटेंस मोर देन वंस ऑल्सो। तो क्या हुआ, अगर इधर भी ऑक्सीजन जवाब है तो यहाँ भी तो है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो मोर देन वंस भी कहता है यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आइए जरा नेक्स्ट बात पे। कहता है इनमें से कौन सा इज अ ग्रीन हाउस गैस। आपको याद है बच्चों? अब देखो ना, मैं क्या कह रहा था
कि पीछे वो जो जीसी वाला ईयरली कर रहे थे उसमें भी तो यही बातें थी, आईजी में भी यही बातें, तो ये दोनों समझो पर्चे दोनों को बेनिफिट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आज से बल्कि जरा एक पाबंदी भी लगवाऊंगा कि सारे लोग जीसी वाली डिस्कशन में भी बैठें, आईजीसीएसई में भी बैठें, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा यार। ठीक है, थोड़ी सेंसिबली बात सोचनी। ग्रीन हाउस गैस जो है दो ही, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और एक मीथेन गैस है। ये दोनों हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग, और उसको हमने पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसको मेथड्स ऑफ ओवरकमिंग इट, वही ट्री प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमने एक मिसाल ली थी इसकी। तो अब ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्रीन हाउस गैस इसमें या तो मीथेन होगी या कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो कहीं दिख नहीं रहा, तो जाहिर है फिर ये मीथेन ही एक ग्रीन हाउस गैस है। तो वो नेचुरल गैस भी थी और इधर से ग्रीन हाउस गैस भी है। लेकिन अच्छा, अब वो कहता है कि बताओ इनमें से कौन सा एक मैक्रो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। देखिए बच्चों, मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपको याद है, एक डायमंड था, एक ग्रेफाइट था, एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड था और एक सिलिकॉन कार्बाइड था। मैं हर मॉक में आपको याद है इनके किसी ना किसी तरह इसको इन्वॉल्व करता रहा, स्ट्रक्चर्स पूछता रहा आपसे, इनकी FAQs, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनके यूजेस। तो सिलिकॉन, अब इनमें से कोई मैक्रोमोलिक्यूलर, ये हैं तो सारे ही सॉलिड हैं, बट सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड या ग्रेफाइट में से कुछ होना चाहिए। उनमें से हमें यही दिख रहा है, सिलिकॉन 4 ऑक्साइड। आप इसका बिल्कुल इसी स्टाइल से नाम लिखो कि दिस इज सिलिकॉन 4 ऑक्साइड। क्या ख्याल? तो भैया बताइए एक बात, यहां तक आप सबको बिल्कुल क्लैरिटी से सिचुएशन समझ में आई? क्या ख्याल, एनी प्रॉब्लम? तो सी ये इस तरह के फ्री के मार्क्स मिलते हैं इसमें, तो आपको बातें याद रखनी चाहिए। जरा लेट्स मैच इट विद द मार्क्स स्कीम, ताकि आपको भी एक आदत बनी रहे। आपने बच्चों पूरा ईयरली अटेम्प्ट करके एंड पे चेक करें। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे पहला आंसर मीथेन है, मीथेन है, इधर भी मीथेन है। ठीक है, इधर भी आपके पास मीथेन आ रहा है। यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, मीथेन, मीथेन, सिलिकॉन 4 ऑक्साइड, सिलिकॉन 4 ऑक्साइड। क्लियर हो गया सर? चलिए अब चलें बच्चों नेक्स्ट उस पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, जरा आप देखिए, कहता है सोडियम Na1122, Na1123, Na1124, ये तीनों आइसोटोप्स हैं। सोचिए बच्चों, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स जो हैं वो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट ही होते हैं। देखो ना, ये सोडियम सोडियम सोडियम, तीनों सोडियम ही के एटम्स हैं जिनका प्रोटॉन नंबर सेम है। देखो इफ यू वॉच क्लोजली तो प्रोटॉन नंबर इसका भी 11, इसका भी 11, इसका भी 11, मास नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, तो वो कहता है ये आइसोटोप्स ऑफ सोडियम है। ठीक हो गया, तो अब मान लेते हैं इस बात को। आगे कहता है कि डिस्क्राइब हाउ दीज सोडियम आइसोटोप्स आर द सेम एंड हाउ दे आर डिफरेंट in terms of total number of protons, neutrons and electrons. तो सेम ये किस तरह है? सेम ये इस तरह है कि they have the same number of protons in the nucleus as they have same proton number. तो इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, they have the same number of protons and electrons भी कह सकते हैं, क्योंकि उसने उस टर्म्स में पूछा है। जी कर दें तो अच्छे। और अब कहता है कि डिफरेंट ये किस तरह, कि इनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट बिकॉज उनका न्यूक्लियन नंबर मुख्तलिफ है। जरा देखो इस चीज को भी सीखते जाते हैं साथ साथ कि वो क्या बोल रहे हैं। तो देखिए इसमें उसने हमें जवाब दिया है कि प्रोटॉन्स आर द सेम या /11 प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर द सेम /11 इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। तो सेम वो किस तरह, दोनों को
इस तरह से आपने मेंशन करना है। उसकी वजह यह है कि देखिए इधर उसने क्या कहा है, इधर ही सेड के इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ईच, उसके लिहाज से बताएं। तो आपको फिर इधर से ये लिखना चाहिए था कि दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जी, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। चले मैं इसको अगर और आप कहते हो थोड़ा सा मजीद इजीली और क्विकली लिख लेते हैं इसको ऐसे। आप यूं कर दो सिंपली कि जी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम ये इस तरह के इन सब में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, इन द न्यूक्लियस, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़ाहिर सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। और डिफरेंट किस तरह इसमें कि दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स इनमें डिफरेंट होंगे। जी वो भी यही बात है, मैंने थोड़ा नीट करके लिखा है, वो जरा कटिंग वटिंग ज्यादा हो रही है, ठीक है। ओ हाँ सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन्स आर इन द शेल्स, तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ये बेहतर होता है, चलें इनकी लोकेशनिंग हम बताते जाएं, जगह भी है तो। जी बिल्कुल ठीक है, अब सही होगा। जी पहले वाला भी यही बात थी यार, वो जरा असल में कटिंग ज्यादा होगी तो मैंने उसको दोबारा रीराइट किया, बेसिकली एक ही बात है। तो देखो ना 3 मार्क्स थे, तो इसमें एक नंबर इस बात का मिल रहा है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दूसरा मार्क सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये पूछा है। अच्छा अब जरा ये कहता है why do all three isotopes have an overall charge of 0? Why do all three isotopes have an overall charge of 0? किसी भी एटम पे ओवरऑल चार्ज 0 हो तो इसका क्या मतलब होता है? बिकॉज उनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स देखो क्या होते हैं, सेम होते हैं। आपको चार्ज 0 इसलिए होता है कि दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो चार्ज एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। तो देखिए सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ना 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 ना, इतना टेक्निकल जवाब नहीं देना आपने, सिंपली देखो एक बात उसने कहा कि कहते हैं यार ये देखो, ये कहता है ये एटम्स शुरू में न्यूट्रल, यानी इन पे 0 चार्ज क्यों है, यानी ये न्यूट्रल क्यों है? इसीलिए न्यूट्रल होते हैं ना कि इसमें अगर 11 प्रोटॉन्स हैं तो 11 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या ख्याल? तो इतने टेक्निकल आंसर्स नहीं देने, सिंपल रखो, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब कहता है व्हाई डू all three isotopes have the same chemical properties? Why do all three isotopes have the same chemical properties? देखिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की एक वजह तो ये है कि ये तीनों सोडियम के ही मेंबर्स हैं, और इनका कौन सा आंसर? हाँ उस आंसर पे मार्क नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, आपने ये बस लिखना है कि कोई भी एटम पे देखो ओवरऑल चार्ज 0 हो तो इसका मतलब है कि उसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो ये सिंपल रखें, देखिए मार्क स्कीम से भी यही बातें सामने आ रही है। अच्छा तो व्हाई डू दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज? बता सकते हैं बच्चों कि इनका सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों होते हैं? ये देखिए कि देखें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज का ना इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से बड़ा ताल्लुक, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो फिर आयन बनेगा, सब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो आयन भी इन सब का सेम ही नहीं बनता। तो पहली वजह उनकी जो 2 मार्क्स बताए ना उसने कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों है, पहला मार्क आपको मिलेगा इस चीज पे कि दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए बच्चों सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो क्या होता है कि दे विल हैव, उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी,
वो सारे लूज एक जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, आयन एक जैसा बनेगा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल फॉर्मूला सेम ही नहीं बनते। और दूसरा कि दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल। दो बातें इसमें आपने ये लिखनी थी कि एक तो वजह ये है कि दे विल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच आइसोटोप, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच आइसोटोप, टोटल भी सेम है, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इन ईच आइसोटोप। इलेक्ट्रॉन का पूरा लफ्ज लिखना, ऐसे आधी आधी बातें। They will have same number of valence electrons in each isotope. ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच आइसोटोप। ये बात याद रखिए कि इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच आइसोटोप होंगे, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज हाउ वी डू दैट। ठीक हो गई। अच्छा, अब आइए जरा नेक्स्ट पे। कहता है कि why do sodium ions have a charge of 1+? जी देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखें कि दे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल। देखो ना कि जितने उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप मुझे बताएं, अगर वो हर आइसोटोप में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है सोडियम के, तो वो लूज करके Na1+ ही बनाएगा। Na1+ बनाएगा तो इसका मतलब उसके केमिकल रिएक्शनों में फॉर्मूले एक जैसे नहीं बनेंगे। मैं पिछले सवाल का जवाब दोबारा एक्सप्लेन करूँ तो उनके फॉर्मूलाज एक जैसे बनेंगे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज फिर एक जैसी नहीं हो जाएंगी। क्या ख्याल? इसलिए अब आओ जरा, कहता है व्हाई डज सोडियम आयंस हैव अ चार्ज ऑफ 1+? क्यों आता है 1+ चार्ज किसी चीज पे? क्योंकि जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जाहिर है फिर एक 1+ चार्ज आएगा, एटम के अंदर एक प्रोटॉन डोमिनेट कर जाएगा, और वो सारी कहानी जो हमने सीखी थी। ये तो चूंकि 1 मार्क ही है, तो बस आप इधर देखो, आपने ये सोचना है कि देखो वो कहता है कि दे ऑल हैव वन मोर प्रोटॉन दैन इलेक्ट्रॉन्स। आप इसमें सिंपली ये लिखो कि सिंस सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, ये पूरी बात इस तरह लिख दो, सिंस सोडियम लूजेस its valence electron, since sodium loses its valence electron, so the atom now has one more proton. ये जवाब समझ आया? one more proton than electrons. क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों बड़ा सिंपल सा एक सवाल है, जिसमें वो कहता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब देखिए उसने एक टेबल सा दिया हुआ है हमें पार्टिकल्स की तादाद निकालने के लिए। तो देखिए बड़े सिंपल सवाल होते हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आपको जिस तरह ट्रेनिंग दी गई पूरे सेशन के दौरान, उसके बाद इंशाल्लाह, जैसे मैं आपको डे 1 से कहता था, याद है कि जब आप गियरलीज पे पहुंचेंगे तो आपको समझ आएगी कि यार सर क्या कहना चाह रहे थे और क्यों वो सब हम रगड़े से गुजर रहे थे। तो अब देख लो, आपके सामने बहुत आसान है, फुल मार्क्स आप उसमें ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि पार्टिकल आपको दिया हुआ है Na1123। ये आपके पास देखिए, अब ये गौर से देखिएगा, ये क्लोराइड आयंस है। ठीक है, ये क्लोराइड का आयन है, इसमें 1 नेगेटिव डला हुआ है, ये ध्यान से देखिए। और इधर हमें सिर्फ उसके प्रोटॉन नंबर्स, मास नंबर्स दिए हुए हैं, एलिमेंट का यहाँ नहीं कुछ बताया हुआ। तो आपसे वो सिंपली बस सवाल में कहता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखो बच्चों, आपने इस टेबल को कंप्लीट कैसे करना है। अब देखिए, ये मिसाल के तौर पे एक सोडियम है Na1123। आप इसमें ये देखो नंबर है, दैट इज 11, प्रोटॉन नंबर 11 है, और 11 है तो फिर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, वो इसने 11 दिए होंगे। चूंकि ये एक न्यूट्रल एटम है, सी इट्स नॉट एन आयन, ये एक न्यूट्रल एटम है। इसके ऊपर टॉप पे देखो, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इस जगह पे इफ यू वॉच तो यहाँ कोई चार्ज नहीं लिखा। तो इसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोटॉन्स के बिल्कुल बराबर होने चाहिए, क्योंकि एवरी न्यूट्रल एटम हैज इक्वल प्रोटॉन्स एंड इक्वल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ताकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करे।
अच्छा, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे होगा? आपको याद है हमने जब बिल्कुल स्टार्ट में केमिस्ट्री स्टार्ट की थी तो यार ये हमारा सबसे पहला होमवर्क याद है, इसी तरह का एक टेबल फिल करना होता था कि प्रोटॉन्स की तादाद, इलेक्ट्रॉन्स की। तो देखिए कहाँ से हमने जर्नी कहाँ तक हम लेकर आए। तो अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो निकालने के लिए आपको याद है व्हाट डू यू डू इन दिस केस? तो न्यूट्रॉन्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस 23 में से इस 11 को माइनस करना है, तो ये आपके पास 12 ये आ जाएगा। और इसी तरह देखिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, अब ये जो बात इसने की है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देखिए निकलते हैं इस मास नंबर और प्रोटॉन नंबर को माइनस करने से। क्यों याद है ये 23 इज द टोटल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, और ये 11 सिर्फ प्रोटॉन्स ओनली है। तो जब आप इस टोटल में से प्रोटॉन माइनस करोगे तो ही न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, तो वो तो हमने निकाल दिया ऐसे 12। लेकिन ये जो इसने दिया हुआ है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, बच्चों याद है न्यूक्लियॉन्स कहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के, न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के कहते हैं। तो वो वाकई इधर उसने 23 इधर 23 लिखा हुआ। अच्छा, अब जरा देखिए ये ध्यान करना कि आपको यहाँ पे अब क्लोराइड की आयन दी हुई, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आपके ये 17 ही होंगे जो इसने यहाँ दिए हुए, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अब जरा तसल्ली से देखिए। देखिए अगर ये क्लोरीन न्यूट्रल होता तो इसमें अगर 17 प्रोटॉन्स हैं तो इसमें 17 ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते, बट 17 अब नहीं होंगे बिकॉज 1 माइनस का मतलब है ये एक गेन करके बैठा हुआ, तो इसका मतलब है कि इसमें अब 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। और देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए तो आपको सिंपली पता है 37 में से 17 माइनस करेंगे तो ये 20 आ गया ऐसे करके। और अब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर हमें चाहिए तो न्यूक्लियॉन्स तो ये टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम यानी 37 यहाँ पे ही होगा। वरना आप इधर से ये प्लस करके भी देख सकते हैं कि देखो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को प्लस कर लें तो 20 प्लस 17 इज स्टिल 37, या डायरेक्ट इधर न्यूक्लियॉन नंबर ही इसका न्यूक्लियॉन नंबर होगा। अब इसी तरह बच्चों गौर करो कि आपके पास ये 26 है। अब देखिए जरा से गौर तलब बात यह है कि एलिमेंट, हमने याद है एक नोट पढ़ा था कि एलिमेंट पहचाना जाता है अपने प्रोटॉन नंबर से। एलिमेंट की पहचान हमेशा याद रखिए उसके प्रोटॉन नंबर से होती है। याद है पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज्ड हैं? दे ऑल हैव बीन अरेंज्ड बाय व्हिच मेथड? वो सब के सब अरेंज हुए हैं थ्रू प्रोटॉन नंबर की अरेंजमेंट के साथ। तो ये बात जरा जहन में रखिएगा आप लोग कि प्रोटॉन नंबर्स को हम उससे पहचानते हैं इसको। अच्छा जी, अब जरा बच्चों आप लोग देखिए कि देखिए अब इसमें हमें अब ये जो फिलअप करना है सारा, जरा इसको देखिए। देखिए आपने इसमें सबसे पहले ये देखना है कि 26 किसका प्रोटॉन नंबर है। उसके लिए इफ यू जस्ट गो टू द वेरी एंड ऑफ योर पेपर, हर पर्चे के एंड पे आपको ईयरलीज में पीरियोडिक टेबल दिया होगा कि 26 जो है वो किसका प्रोटॉन नंबर है। देखिए 26 का मतलब है कि वो 26 नंबर पे ही होगा। तो आप जरा ये देखिए, अच्छा यार इस पीरियोडिक टेबल के सैंपल्स में गौर करना, प्रोटॉन नंबर ऊपर और मास नंबर्स नीचे लिखे। तो आपने देखना है कि किसका प्रोटॉन नंबर 26 है। देखिए 18 तक तो हम ये पहुंच गए, फिर उसके बाद ये आ गया 19 आ गया, 20 आ गया, ये 23 आ गया, उसके बाद ये 26 जो है, 26 जो बनता है जरा गौर से देखिए ये किसका है जी? 26 वाला बनता है आपका ये आयरन का, ठीक है जी। 26 इज फॉर आयरन बेसिकली। तो बच्चों इसमें ये जो 26 प्रोटॉन नंबर है, अब देखिए आप पीरियोडिक टेबल में अगर जाएं तो आपको सबसे एंड ऑफ द पेपर के ऊपर पीरियोडिक टेबल हमेशा उसकी एक कॉपी दी जाती है। तो 26 आपने देखना है कि किसका यहाँ से प्रोटॉन नंबर आता है। अच्छा बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि इस वक्त आपने ना ये जो पीरियोडिक टेबल का सैंपल आपको दिया हुआ है, इसमें गौर कीजिए छोटा नंबर ऊपर लिखा हुआ है और बड़ा नंबर नीचे। प्रोटॉन नंबर ऊपर है, मास नंबर नीचे है, तो ये एहतियात कीजिएगा कहीं आप गलती से उसको ना देख लें। नॉर्मली आपको याद है ना प्रोटॉन नंबर नीचे लिखा होता है एलिमेंट के और बड़ा नंबर यानी मास नंबर ऊपर होता है, तो ये एहतियात कीजिएगा कि आपको पीरियोडिक टेबल किस टाइप का दिया गया। तो देखें आप अगर चेक करें तो 26 जो प्रोटॉन नंबर है, सीक्वेंस में आप चलते जाओ, देखो ना हर एलिमेंट 25, 26, 27, 28, 29 प्रोटॉन नंबर कंसेक्यूटिव होता है। तो 26 भी कंफर्म हो गया मास नंबर है आयरन का। तो गोइंग बैक टू आवर टेबल ऑफ क्वेश्चन 3 जिसमें वो उसने हमें कहा है कि हमने पहचानना है
कि ये एलिमेंट थर्ड वाला किस चीज का है। तो आप देख रहे हो बच्चों कि इतना तो हमें समझ आ गई कि ये सिंबल Fe इसका लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर कीजिए कि क्या ये न्यूट्रल फ्लोरीन है, सॉरी न्यूट्रल आयरन है, या ये कोई चार्ज पार्टिकल है। ये देखने के लिए आपने ये देखना है कि देखो इस बट इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो यहाँ 24 है। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि प्रोटॉन्स अगर उसमें 26 हैं और इलेक्ट्रॉन्स 24 हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके बैठा हुआ है। न्यूट्रल आयरन होता तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स भी 26 प्रोटॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 26 होते, याद है। लेकिन यहाँ तो 24 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब है कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हुए हैं। दिस एटम हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब दो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हुए हों, तो क्या यहाँ पे Fe न्यूट्रल होगा या Fe2 पॉजिटिव होगा। तो दो लूज करने पे इसके साथ हम 2+ का वो लगा रहे हैं। तो ये एक पूरा कंप्लीट टेबल आप इसको गिवन मार्क्स स्कीम से मैच भी कर लीजिएगा, ये आपको यहाँ तक क्लियर हो जाए।